Hello students, today I am going to discuss determination of income and employment. This is your first class of this chapter, determination of income and employment. Okay, first of all we have to know what is the meaning of that word determine. Determination means to find the equilibrium. We know about that the meaning of that word equilibrium. So determination means to find the equilibrium. Here income means national income. So always remember, when you see the income, that income means national income. And employment, last one is employment, that employment of resources. And we know there are four kinds of resources. First one is land, then labor, next capital, and last one is entrepreneur. So we deals with that labor in this chapter. Here employment deals with labor. So we know about the meaning of that chapter. First of all, determination means to find the equilibrium. National income means income, and employment means the employment of resources. Here resources means only labor. Okay. Now we have to see there are two important points in this chapter. First one is ex ante and next one is ex post. Now the question is, what is the meaning of that word ex ante? Here ex ante means planned. Here ex ante means planned. Here plan means futuristic planned or intended. Here futuristic planned means what? सोचो कि हम लोगों के इंडिया में फ्यूचर में कितना ग्रोथ होगा, जीडीपी के कितना हाई होगा, वो प्लान अभी से करना पड़ेगा, इकोनॉमिस्ट को अभी से करना पड़ता है. वही चीज़ हम लोगों को प्लान करना पड़ता है. जैसे कि हम लोगों का जो बोर्ड एग्ज़ाम है, उस बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे हम लोग तैयारी करेंगे, कैसे हम लोग उसमें अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे. दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ प्लानिंग. सो दैट प्लानिंग पार्ट is the example of ex ante, and ex post means actual. So I repeat, ex post means actual. जो पीछे ऑलरेडी हो गया है उसको हम लोग ex post हमेशा कहेंगे. ओके, सो ये चीज़ याद रखो ex ante and ex post के बारे में जो मैंने अभी कहा. Now the important point is this chapter always deals with एक्स एंटे. सो हम लोग ये चैप्टर में एक्स एंटे के बारे में हमेशा पढ़ेंगे. बिकॉज इकोनॉमिक्स फ्यूचर एनालिसिस, इसमें मैंने ये लाइन ऐड किया है. ये किस लिए ऐड किया है? हम लोग जानते हैं कि इकोनॉमिक्स हमेशा फ्यूचर एनालिसिस के ऊपर डिपेंड करके बोला जाता है. तो ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है. तो इकोनॉमिक्स का जो हमेशा हम लोग पढ़ते हैं उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि इकोनॉमिक्स फ्यूचर एनालिसिस के ऊपर डिपेंड करके हम लोग को रिजल्ट देता है. सो एक्स एंटे इसके ऊपर फिट होता है, इसलिए एक्स एंटे हम लोग इस चैप्टर में हमेशा पढ़ेंगे. इसका एग्जांपल हमेशा पढ़ेंगे. ओके, नेक्स्ट वन इज एग्रीगेट डिमांड. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एग्रीगेट डिमांड. सो एग्रीगेट डिमांड मीन्स वी आर टेकिंग अबाउट एंटायर इकोनॉमी. In aggregate demand, we taking about entire economy. Here, entire economic का meaning क्या है? It is the money value of goods and services. It is the money value of goods and services which all the sector of economy taking together are planned to buy at a particular level of income during a period of time. I repeat, aggregate demand. In aggregate demand we always talking about entire economy. पूरे entire economy के ऊपर डिपेंड करके aggregate demand हम लोग पढ़ेंगे. So it is the money value of goods and services which all the sectors
of the economy taking together are planning to buy at a particular level of income during a period of time. Here all the sector का मीनिंग क्या है? सेक्टर तो हम लोग जानते हैं, मगर ऑल द सेक्टर मीन्स कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग सोचेंगे. कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो सेक्टर में जो रहेगा वो है हाउस होल्ड, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड फॉरेन सेक्टर. मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, हम लोग सेक्टर के बारे में जब भी पढ़ेंगे एग्रीगेट डिमांड में, वो उस समय हम लोग कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे. कंजम्पशन मीन्स जो हम लोग कंज्यूम करते हैं. हम लोग क्या क्या कंज्यूम करते हैं वो तो तुम लोग जानती ही हो. उस कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ हम लोग हमेशा पढ़ेंगे, हम लोग याद रखेंगे कि एग्रीगेट डिमांड क्या कहलाता है. इन कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्टर को हम लोग 4 तरीके से डिवाइड किया: हाउस होल्ड, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड फॉरेन सेक्टर. ये जो हाउस होल्ड है इसको अच्छी तरह से देखो. इसमें मैंने क्या लिखा? प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. हाउस होल्ड के अंदर क्या आएगा? प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंदर मनी वैल्यू ऑफ गुड्स, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच द हाउस होल्ड ऑफ प्लानिंग टू स्पेंड ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम. तो मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच द हाउस होल्ड्स आर प्लानिंग टू स्पेंड during a period of time is called a household. Next one is investment expenditure. Private expenditure, investment expenditure हमेशा private expenditure के ऊपर डिपेंड करता है. Private investment expenditure, देखो इसमें भी मैंने क्या बोला? Private consumption expenditure. इसमें भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के ऊपर डिपेंड करके हम लोग बात करेंगे. प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर हम लोग क्या बोलेंगे? मनी वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड्स and services which the producers are planning to spend during a period of time. देखो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के बारे में बोल रहा हूँ. इसमें मैंने ये चीज़ लिखा कि मनी वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड्स. हम लोग जानते हैं कैपिटल गुड्स क्या है? जिसका वैलिडिटी मोर देन 1 ईयर है, और जिसका वैलिडिटी मोर देन 1 ईयर मीन्स, इसका एग्जांपल मशीनरी में हम लोग मशीनरी के द्वारा बोल सकते हैं. मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी है, फिर फ्यूचरिस्टिक बहुत सारा एसेट है. सो ये मनी वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड्स एंड सर्विसेज which the producers are planning to spend during a period of time. इसको हम लोग डिनोट करेंगे आई से. इससे पहले हाउस होल्ड को कंजम्पशन जो हुआ था उसको सी से मैंने डिनोट किया. इसके बाद गवर्नमेंट सेक्टर. गवर्नमेंट सेक्टर में आएगा गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंदर मैंने क्या लिखा? मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू प्रोवाइड ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम. मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू प्रोवाइड ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम. सो इसको मैंने जी से डिनोट किया. दोबारा से बोल रहा हूँ, हाउस होल्ड सी से, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आई से, और गवर्नमेंट सेक्टर को जी से. नेक्स्ट वन इज फॉरेन सेक्टर. क्योंकि हम लोग वो देख के आए कि कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से 4 सेक्टर है: हाउस होल्ड, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर. और सो लास्ट वन इज फॉरेन सेक्टर. दैट फॉरेन सेक्टर मीन्स मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच द फॉरेनर आर प्लानिंग टू बाय ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम. ओके, इसको हम लोग एनएक्स के द्वारा बोल सकते हैं. अगर तुम लोगों को एग्जाम्पल चाहिए फॉरेनर्स प्लानिंग टू बाय, तो ऑब्वियसली बहुत सारा एग्जाम्पल है, वो तुम लोग गूगल भी कर सकते हो. सो फॉरेन सेक्टर के अंदर फॉरेन वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच द फॉरेनर्स आर प्लानिंग टू बाय, फॉरेनर्स प्लानिंग टू बाय, ओके, ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम. सो एग्रीगेट डिमांड का अगर फॉर्मूला हम लोग देखेंगे, उसमें क्या मैंने बोला? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स. सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स. ओके, इसको हम लोग सम करेंगे तो हम लोगों का आंसर क्या आएगा? एग्रीगेट डिमांड. सो दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, एग्रीगेट डिमांड क्या है? एंटायर इकोनॉमी का बात बोल रहे हैं. एंटायर इकोनॉमी में क्या क्या आएगा? गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच ऑल द सेक्टर्स. यह सेक्टर मीन्स 4 सेक्टर. 4 सेक्टर का नाम मैंने दिया CIGNX.
ओके, सो इसको समेशन करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड आएगा। अगर क्वेश्चन में ये बोलेगा कि टू सेक्टर इकोनॉमी के बारे में बताओ, तो हमेशा हम लोग सी प्लस आई को लेंगे। सी प्लस आई क्या है? हाउस होल्ड प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। टू सेक्टर इकोनॉमी के बारे में बोलेंगे तो सी प्लस आई को लेंगे। उसको हम लोग क्लोज इकोनॉमी भी बोल सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन ये आ सकता है। टू सेक्टर इकोनॉमी को हम लोग क्या बोलेंगे? सी प्लस आई। थ्री सेक्टर इकोनॉमी को क्या बोलेंगे? सी प्लस आई प्लस जी। फोर सेक्टर इकोनॉमी को क्या बोलेंगे? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स। बेसिकली हम लोगों को सिलेबस में टू सेक्टर इकोनॉमी का ही ज्यादा महत्व है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्रीगेट सप्लाई। देखो क्या क्या मैंने अभी खत्म किया टॉपिक। पहला है बेसिक, इसके बाद है एग्रीगेट डिमांड, इसके बाद मैं आ रहा हूं एग्रीगेट सप्लाई। ओके, एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या है? मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच ऑल द प्रोड्यूसर्स, remember all the producers of the economy taken together are planning to produces during a period of time। मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच ऑल द प्रोड्यूसर्स ऑफ द इकोनॉमी। प्रोड्यूसर्स कौन है तुम लोग जानते हो। टेकन टुगेदर आर प्लानिंग टू प्रोड्यूस। आर प्लानिंग टू प्रोड्यूस वही बात मैं दोबारा से बोलता हूँ, एक्स एंड टेका जो प्लान किया था, इसलिए प्लानिंग टू प्रोड्यूस during a period of time। that planning to produce is equal to planning to supply। ये कैसे हो सकता है? देखो, मैं एग्रीगेट सप्लाई के बारे में बोल रहा हूँ, मगर मैं प्रोड्यूस के बारे में क्यों बोल रहा हूँ अभी? अगर प्रोड्यूस नहीं होगा तो सप्लाई कैसे होगा? प्रोड्यूस नहीं होगा तो सप्लाई ऑब्वियसली नहीं होगा। अगर हम लोगों का डिमांड नहीं रहेगा तो प्रोडक्शन कंपनी प्रोडक्शन नहीं करेगा। तो प्रोडक्शन कंपनी प्रोडक्शन नहीं करेगा तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन कंपनी सप्लाई भी नहीं करेगा वो उस प्रोडक्ट को। तो हम लोग का अगर डिमांड बढ़ेगा तो ही तो प्रोडक्शन कंपनी प्रोडक्शन करेगा और उस प्रोडक्ट का मार्केट में सप्लाई भी ज़्यादा रहेगा। तो प्रोड्यूसर अगर प्लानिंग टू प्रोड्यूस करेंगे तो ऑब्वियसली प्लानिंग टू सप्लाई ही तो कर रहे हैं ना। सो प्लानिंग टू प्रोड्यूस इज इक्वल टू प्लानिंग टू सप्लाई। हियर प्रोड्यूसर्स इज इक्वल टू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। तीनों को हम लोग प्रोड्यूसर के अंदर लेके आएंगे। तो प्रोड्यूसर के अंदर क्या कौन कौन को लेके आएंगे? प्राइमरी, टर्शियरी एंड सेकेंडरी, तीनों को लेके आएंगे। यार एग्रीगेट सप्लाई का बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, उसको देखो हम लोग नेशनल इनकम के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किस लिए? एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या है? व्हाट इज द प्रोडक्शन और व्हाट द प्रोडक्शन आर प्लानिंग टू प्रोड्यूस, व्हाट द प्रोड्यूसर्स आर प्लानिंग टू प्रोड्यूस। हियर प्रोड्यूसर्स आर प्लानिंग दैट हाउ मच कॉस्ट दे विल इनकर्ड ऑन द प्रोडक्शन। देखो प्रोड्यूसर अगर प्लानिंग करेगा तो उसका कॉस्ट तो आएगा ना। प्लानिंग अगर करेगा प्रोड्यूसर, उसके अंदर प्रोडक्शन कॉस्ट तो रहेगा ही ना। सो ये तो प्लानिंग, प्रोड्यूसर्स आर प्लानिंग दैट हाउ मच कॉस्ट दे विल इनकर्ड ऑन प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन करने के समय कितना कॉस्ट उसको बेयर करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली वो कॉस्ट क्या है? फैक्टर कॉस्ट है। फैक्टर कॉस्ट के अंदर क्या आ सकता है? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ये हम लोग ऑलरेडी नेशनल इनकम में देख चुके हैं। सो वी नो सम ऑफ द रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट इज इक्वल टू नेशनल इनकम। ये चीज तो हम लोग जानते हैं कि रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट चारों को अगर ऐड करेंगे हम लोग का क्या आएगा? नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम इज इक्वल टू एवरेज सप्लाई। हम तो बोल सकते हैं ना, ये क्वेश्चन 3/4 मार्क्स के लिए बोर्ड में आता ही है हमेशा। एक चीज मैं बोल के देता हूँ, बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर एवरेज सप्लाई इज इक्वल टू नेशनल इनकम, हाउ? तुम लोग बोल सकते हो कि एवरेज सप्लाई का मतलब क्या है? प्रोड्यूसर्स आर प्लानिंग टू प्रोड्यूस। हियर प्रोड्यूसर्स आर प्लानिंग टू प्रोड्यूस दैट हाउ मच कॉस्ट दे विल इनकर्ड ऑन द प्रोडक्शन। हियर प्रोडक्शन कॉस्ट के लिए हम लोग फैक्टर कॉस्ट को लेके आ सकते हैं। तो फैक्टर कॉस्ट तो इसमें इंक्लूड होगा ही। तो फैक्टर कॉस्ट अगर इंक्लूड होगा तो फैक्टर कॉस्ट में क्या क्या रहता है? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। और रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट का अलग नाम क्या है? नेशनल इनकम में ये अलग नाम हम लोग बोल सकते हैं। यानी
फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू नेशनल इनकम. सो दैट नेशनल इनकम अगर होगा वो चीज़ जो ऑब्वियसली एवरेज एग्रीगेट सप्लाई, तो नेशनल इनकम का पार्ट ही हुआ ना, इजिकल टू हुआ ना. तो इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं. ओके, सो इफ अभी देखो, इफ एवरेज सप्लाई इज इक्वल टू नेशनल इनकम, देन नेशनल इनकम ऑलवेज कंज्यूम प्लस सेव. हाउ? देखो, अच्छी तरह से देखो, नेशनल इनकम के अंदर कंज्यूम भी होता है, कंजम्पशन भी होता है और सेविंग्स भी होता है. कंजम्पशन अगर सेविंग्स नहीं रहेगा तो नेशनल इनकम कैसे होगा? ठीक है ना. इसका एक एग्जांपल देता हूँ, अच्छी तरह से सुनो. देखो, अगर इनकम रहेगा, इनकम को हम लोग क्या करेंगे? कंज्यूम करेंगे, नहीं तो सेव करेंगे. कंज्यूम और सेव दोनों ही करेंगे. सोचो कि कंज्यूम भी करेंगे, सेव करेंगे. अगर तुम इनकम कर रहे हो उसका तो कंज्यूम, कुछ खाने पीने के लिए तो कंज्यूम करोगे ना, उसको भी सेविंग भी करोगे. सो ये इनकम को अगर नेशनल इनकम हम लोग बोलेंगे, नेशनल इनकम के अंदर कंज्यूम भी होता है तो सेविंग भी होता है. और हम लोग जानते हैं कि नेशनल इनकम और एवरेज सप्लाई बोथ आर इक्वल. दैट्स वाई एवरेज सप्लाई इज इक्वल टू कंज्यूम प्लस सेव. ये तो बोल सकते हैं ना. सो यही मैं बोलना चाहता हूँ. ओके, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं प्रोपेंसिटी ऑफ कंज्यूम. ये एक अलग टॉपिक है. प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के अंदर हम लोग दो डिवीजन देखते हैं. वन इज एपीसी एंड अनदर इज एमपीसी. मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, प्रोपेंसिटी ऑफ कंज्यूम के अंदर दो डिवीजन हम लोग देखते हैं. वन इज एपीसी एंड अनदर इज एमपीसी. एपीसी का फुल फॉर्म क्या है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. एपीसी का फुल फॉर्म है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. ओके, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसको हम लोग सी बाई वाई से डिनोट कर सकते हैं. सी बाई वाई. सी क्या यानी कंजम्पशन, वाई यानी इनकम. इट इज दैट फ्रैक्शन ऑफ इनकम विच इज कंज्यूम्ड. अगर देखो, रेशियो ऑफ कंजम्पशन अगेंस्ट इनकम, इसको हम लोग रेशियो ऑफ कंजम्पशन अगेंस्ट इनकम भी बोल सकते हैं. रेशियो मैंने बोला है. सोचो कि तुम्हारा इनकम है 10,000 और कंजम्पशन है 8,000. तो सी बाई वाई मेरा फॉर्मूला है, एपीसी आएगा सी बाई वाई से. तो 8,000 डिवाइडेड बाई 10,000 इज इक्वल टू 0.8. दिस इज आवर एपीसी. एपीसी का फुल फॉर्म क्या है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. और एमपीसी क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. इसका जो मीनिंग है वो है रेशियो ऑफ चेंजिंग कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम. मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, एमपीसी का फॉर्मेट क्या है? रेशियो ऑफ चेंजिंग कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम और दैट फ्रैक्शन टू चेंज in which income is generated. देखो, ये डेल्टा जब यूज करेंगे, हम लोग हमेशा बोलते थे कि ये चेंज के समय डेल्टा को यूज करेंगे. अभी ये डेल्टा को जब यूज किया मैंने, वो चेंज के समय ही यूज किया, दोनों चेंज ही है. सो ये चीज याद रखेंगे, जब चेंज लिखेंगे उस समय डेल्टा को यूज करेंगे. ओके, सो here it is, the formula is same. इसको देखो, c by y है. इसको देखो, डेल्टा c by डेल्टा y. why डेल्टा c? because of change. why डेल्टा y? because of change. अभी इस फॉर्मेट को हम लोग अच्छी तरह से देख लेते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा. 2019 में सोचो कि तुम्हारा इनकम है 10,000 और कंजम्पशन है 8,000. तो 2019 में तुम्हारा इनकम कितना है? 10,000 और कंजम्पशन कितना है? 8,000. 2020 में सेम ही थोड़ा सा इनकम बढ़ गया और कंजम्पशन तुम्हारा भी बढ़ गया. बिकॉज ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं ये नॉर्मल फैक्टर है कि अगर इनकम बढ़ेगा तो ऑब्वियसली कंजम्पशन भी हम लोग ज़्यादा करेंगे. सो 2020 में मेरा इनकम अगर बढ़ गया, कंजम्पशन भी बढ़ेगा. तो एमपीसी क्या होगा? चेंज. चेंज क्या है?
पहला क्या है, सी यानी कंजम्पशन। इसमें अगर चेंज देखोगे, अच्छी तरह से देखो, अभी हम लोग बात करेंगे प्रोपेंसिटी टू सेव के बारे में। प्रोपेंसिटी टू सेव के अंदर देखो, पिछले क्या था, ये पार्ट मैंने खत्म किया, अभी है प्रोपेंसिटी टू सेव। सेव में क्या ऐड हुआ है, एस हुआ है। कंजम्पशन में, कंज्यूम में क्या था, सी था। तो अभी देखो, मैंने एस को ऐड किया, एस को ऐड किया, एमपीएस और एपीएस। बाकी तो ए और पी तो सेम है, एम और पी तो सेम है। सो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव के अंदर फॉर्मूला क्या है, एस बाई वाई। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव के अंदर फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई। वाई माइनस सी इज इक्वल टू सेविंग्स इज माई फॉर्मूला। कैसे होता है, वाई क्या है, इनकम, माइनस सी क्या है, कंजम्पशन, इज इक्वल टू सेविंग्स। इसको और एक इंपॉर्टेंट चीज लिख सकते हैं, इनकम इज इक्वल टू एस प्लस सी, सेविंग्स प्लस कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम। कैसे, वाई को अगर इस साइड में लेके जाएंगे तो ऑब्वियसली प्लस होगा। सो कंजम्पशन तो सी को द्वारा मैं बोल सकता हूं, इसलिए मैंने ये वाला चीज बोला। अभी इसका हम लोग यूज करेंगे कहां पे, इस जगह में। देखो, रिलेशनशिप अगर क्वेश्चन आएगा, रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एंड एपीएस, उस समय तुम क्या करोगे, उस समय तुम दोनों का फॉर्मूला लिखोगे। एपीसी इज इक्वल टू सी बाई वाई, एपीएस इज इक्वल टू एस बाई वाई। सी क्या है, कंजम्पशन, और एस क्या है, सेविंग्स। अगर दोनों को ऐड करेंगे क्या आएगा, सी बाई वाई प्लस सी बाई एस। हियर वाई इज इक्वल टू एलसीएम, सी प्लस एस ऊपर में आएगा, ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं। सी प्लस एस, इसका और एक नाम क्या है, आई है। कैसे, देखो इस जगह में देखो, सी प्लस एस इज इक्वल टू आई हुआ ना। सेविंग्स प्लस कंजम्पशन, ऑब्वियसली दोनों को मिला के तो इनकम होता है। तो सी प्लस एस इज इक्वल टू वाई, तो वाई बाई वाई इज इक्वल टू 1। तो रिलेशनशिप बिटवीन एपीएस एंड एपीसी हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ओके, नाउ अभी इंपॉर्टेंट बात है, रिलेशनशिप बिटवीन एमपीएस एंड एमपीसी। एमपीसी का फॉर्मूला क्या है, सेम, सी बाई वाई, एमपीएस एस बाई वाई, दोनों को मिला दो, सेम ही 1 ही होता है। यानी एपीएस, एपीसी एंड एपीएस दोनों में 1, एंड एमपीसी एंड एमपीएस दोनों का जो रिलेशनशिप है वो भी 1 है। हम लोगों ने देख लिया ये चीज। सो क्वेश्चन अगर आएगा तो तुम लोग ये फॉर्मेट और ये फॉर्मूला यूज करके उसको दिखा देना। अगर पिछले साल का कुछ क्वेश्चन पेपर तुम लोग देखोगे तो इसका क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट वन इज ऑटोनोमस कंजम्पशन एंड मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन। ऑटोनोमस का मतलब क्या है, जो खुद डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में खुद लेता है डिसीजन। फॉर एग्जाम्पल सीबीएसई, फॉर एग्जाम्पल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, IRDA, SEBI. So they are the autonomous body. UGC, they are the autonomous body. So autonomous consumption और minimum level of consumption का मतलब है, autonomous consumption के बारे में अभी बोल रहे हैं। Consumption depends upon income, ये हम लोग जानते हैं। Consumption income के अलावा कुछ नहीं होता है। इनकम अगर होगा तो कंजम्पशन तो होगा ही। मगर देखो, अगर इंक्रीज होगा इनकम तो कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा, वही हम लोग पिछले स्लाइड में देखा। अभी सुनो, प्रैक्टिकल अप्रोच में सोचो, अगर तुम्हारा इनकम अभी 0 है, सोचो कि तुम्हारा एक नौकरी था, वो नौकरी चला गया, उस समय क्या तुम कंजम्पशन नहीं करोगे? यस, कंजम्पशन करोगे। किसी से तुम लोन लेके, किसी से उधार लेके तुम ये कंजम्पशन करोगे। कंजम्पशन तो तुम्हारा 0 नहीं होगा। अगर 0 होगा तो तुम मर जाओगे। सिंपल बात। उस समय क्या करोगे, इनकम जब 0 होगा उस समय कंजम्पशन तुम्हारा एक ना कुछ रहेगा। तो कंजम्पशन इंडिपेंडेंट हुआ ना। कंजम्पशन तो इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है इस जगह में, ऑटोनोमस कंजम्पशन में। तो कंजम्पशन इंडिपेंडेंट हुआ। सो कंजम्पशन अगर इंडिपेंडेंट हुआ तो ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, ऑटोनोमस।
So consumption which is independent of income और कंजम्पशन विच इज जीरो लेवल इनकम इज कॉल्ड एन ऑटोनोमस कंजम्पशन। समझ में आया? तो ये चीज याद रखना मैंने जो बोला, सिंपल बात, कंजम्पशन अगर जीरो है, सॉरी इनकम अगर जीरो है उस समय भी कंजम्पशन चलेगा, उस कंजम्पशन को हम लोग ऑटोनोमस कंजम्पशन बोलेंगे। देखो इसमें मैंने एक एग्जांपल लिया, ये दोनों पार्ट को देखो। जब तुम्हारा इनकम वाई यानी इनकम जीरो है उस समय तुम्हारा कंजम्पशन है 1000, उसको हम लोग ऑटोनोमस कंजम्पशन बोल सकते हैं। जब इनकम जीरो तब कंजम्पशन कितना है 1000। जब तुमने इनकम करना शुरू किया 500, तुम्हारा कंजम्पशन थोड़ा सा बढ़ा, यानी सी ग्रेटर देन वाई है, उस समय एपीसी कितना होगा सी बाई वाई, यानी 1200 डिवाइडेड बाई 500 तो 2.4। अभी थोड़ा सा कंजम्पशन इंक्रीज हुआ है 1000 में, उस समय देखो, सॉरी इनकम, तो उस समय देखो कंजम्पशन भी इंक्रीज हुआ है, थोड़ा सा और बढ़ेगा कंजम्पशन। अभी देखो डी सेविंग्स का मतलब क्या है। जब तुम्हारा इनकम जीरो है उस समय तुम्हारा कंजम्पशन कितना था 1000, यानी डी सेविंग क्या है 1000 है। तुम्हारा सेविंग्स तो नहीं है, पूरा ही तुमने लोन ले लिया, पूरा ही पैसा तुमने लोन लेके तुमने ये कंजम्पशन किया, सोच लेते हैं, इसलिए मैं 1000 इस जगह में डी सेविंग्स किया। अभी 500 से, अभी ये 500 से तुम 500 जब तुम्हारा इनकम है तभी तुम्हारा कंजम्पशन कितना है 1200, उस समय तुम्हारा डी सेविंग कितना है, थोड़ा सा बेटर हुआ है, डी सेविंग 700 हुआ है, यानी तुमने सिर्फ 700 का लोन लिया है। इसके बाद 1000 से 1400, उस समय 400 का थोड़ा सा और बेटर हुआ तुम्हारा। अभी तुम्हारा प्रमोशन हो रहा है 1500 से 1600 तक चला गया, अभी थोड़ा सा बढ़ा। देखो इनकम जितना बढ़ता है कंजम्पशन तो इतना नहीं बढ़ता है नॉर्मल केस में। सो इनकम थोड़ा सा बढ़ा, कंजम्पशन भी बढ़ा, मगर इतना इंक्रीजिंग ट्रेंड में नहीं बढ़ा। ये 4 नंबर में देखो अच्छी तरह से 1500 1600। ओके, सो अभी क्या है, अभी 1500 एंड 1600 में 100 का डी सेविंग्स हुआ है। अभी इनकम थोड़ा सा और बढ़ गया 2000, अचानक से थोड़ा सा और प्रमोशन तुम्हें मिल गया और तुम्हारा कंजम्पशन है 1800, उस समय तुम्हारा सेविंग्स शुरू हुआ। तो सेविंग स्टार्ट कब हुआ, लास्ट में 2000 में जाके। एक एग्जांपल मैंने लेके बैठा तुम लोग के सामने। तो एपीसी ग्रेटर देन 1, एपीसी ग्रेटर देन 1 व्हेन कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम। मैं दोबारा से बोल रहा हूं, एपीसी ग्रेटर देन 1 व्हेन कंजम्पशन ग्रेटर देन इनकम, एंड इन सच ए सिचुएशन द वैल्यू ऑफ एपीसी इज नेगेटिव। इन सच ए सिचुएशन द वैल्यू ऑफ एपीसी इज नेगेटिव। कैसे देखो, जब तुम्हारा सेविंग्स 700 था उस समय एपीएस का फॉर्मूला क्या है, एस बाई वाई। देखो मैंने लिखा इस जगह में, तो मैं दोबारा से बोल रहा हूं कि जब तुम्हारा सेविंग्स 700 था, यानी डिस सेविंग्स नहीं, डिस सेविंग 700 था, यानी माइनस था सेविंग्स, तुम्हारा कंजम्पशन कितना था 1200, तुम्हारा इनकम कितना था उस समय 500। रूल्स क्या है, इनकम नीचे जाएगा सेविंग्स ऊपर आएगा, सिंपली -700 डिवाइडेड बाई 500 इज इक्वल टू -1.4। दैट्स वाई ये क्वेश्चन अगर पूछेगा एग्जाम में, तुम लोग ये एग्जाम्पल को दिखा देना, इसलिए एमपीएस नेगेटिव होता है। इन सच सिचुएशन द वैल्यू ऑफ एमपीएस इज नेगेटिव व्हेन एपीएस ग्रेटर देन 1, व्हेन कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम, एंड इन सच ए सिचुएशन द वैल्यू ऑफ एपीएस इज नेगेटिव। ओके, next the value of MPS and MPC and MPS lies between 0 to 1. With the increase in income there will be increase in consumption, but not the same proportion. That's why 0 to 1 के अंदर ये आता है। ये भी एक क्वेश्चन का तुम लोगों का आंसर है। ओके, नाउ कंजम्पशन फंक्शन क्या है, देखो कंजम्पशन फंक्शन, functional mathematical relationship between income and consumption। मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, functional mathematical relationship between income and consumption। we know autonomous consumption क्या है, जीरो लेवल ऑफ इनकम। ऑटोनोमस कंजम्पशन तो हम लोगों को पता चल गया, जीरो लेवल ऑफ इनकम में ऑटोनोमस कंजम्पशन हम लोग बोल सकते हैं। बट देयर आर सम कंजम्पशन, जीरो इनकम में भी
कुछ कंजम्पशन होता है। इस जगह में हम लोगों ने देखा जब जीरो था इनकम उस समय भी कंजम्पशन हुआ था। ओके, सो कंजम्पशन फंक्शन में फंक्शनल और मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन के बात करेंगे। इस जगह में ऑटोनोमस कंजम्पशन को मैं सी बार पकड़ लेता हूं। हियर बार मीन्स व्हाट? बार मीन्स कंजम्पशन एट जीरो लेवल। ओके, बार मीन्स कंजम्पशन एट जीरो लेवल, यानी ऑटोनोमस कंजम्पशन। इसको हम लोग ऑटोनोमस कंजम्पशन भी बोल सकते हैं। बार का सिंबल तो ये है, इसलिए मैंने ये सिंबल लिया। सो ये चीज याद रखना, सी बार इज इक्वल टू ऑटोनोमस कंजम्पशन। इफ कंजम्पशन हम लोग जानते हैं, इफ कंजम्पशन सी बार प्लस बी विद इन ब्रैकेट वाई, बी क्या है? एमपीसी है। ये फॉर्मूला है, ये हमेशा याद रखना पड़ेगा तुम लोगों को। बी क्या है? एमपीसी है। ओके, और वाई क्या है? इनकम लेवल है। मैं दोबारा से बोल रहा हूं, सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी विद इन ब्रैकेट वाई। दैट वाई यानी इनकम, बी यानी एमपीसी। देखो एक एग्जांपल को, इफ वाई इज इक्वल टू 10,000 एंड सी इज इक्वल टू 5,000, सी बार सी कितना होगा? सी इज इक्वल टू सी बार प्लस 0.8। 0.8 को मैं पकड़ लेता हूं एक एग्जांपल के द्वारा। 0.8 तुम्हारा एमपीसी है। सोचो कि 0.8 तुम्हारा एमपीसी है। सो 0.8 इंटू 10,000, 0.8 इंटू 10,000, 10,000 क्या है? इनकम है। फॉर्मूला देखो, बी एमपीसी 0.8 इंटू वाई 10,000 क्वेश्चन में दिया गया है। सो हम लोग ये जानते हैं ये चीज। अभी 5,000 तो हम लोग का सी बार है, ये तो क्वेश्चन में गिवन है, प्लस 8,000। ये कैसा आया? इसको मल्टीप्लाई करो, 8,000 आएगा, तो हम लोग का आंसर आएगा 13,000। वो है कंजम्पशन। सेम तरीके से दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। जब इनकम है 20,000, कंजम्पशन है 5,000। सो सी इज इक्वल टू 5,000 प्लस 0.8 मैंने लिया था, एजम्पशन लिया था कि एमपीसी मेरा क्वेश्चन में, क्वेश्चन में गिवन है एमपीसी इज इक्वल टू 0.8 उस समय। ओके, 0.8 इंटू वाई, वाई यानी इनकम, उस समय 21,000 चला आया। सो ये क्या है? ये है कंजम्पशन फंक्शन। ओके, ये कंजम्पशन फंक्शन को हम लोग ऐसे याद रखेंगे। क्वेश्चन में अगर गिवन होगा तो कंजम्पशन फंक्शन क्या है? ये मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। ओके, अभी इस कंजम्पशन फंक्शन को हम लोग एक डायग्राम के द्वारा देखते हैं। ओके, मैं दोबारा से बोल रहा हूं, ये कंजम्पशन फंक्शन को हम लोग एक डायग्राम के द्वारा देखते हैं। सोचो कि ये एक डायग्राम है जिसमें ये है कंजम्पशन, ये है इनकम। ओके, ये जीरो। हम लोग जानते हैं बिकॉज ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन के लिए जब इनकम जीरो रहता है उस समय भी कंजम्पशन रहता है, इसलिए मैंने कंजम्पशन को इस जगह से शुरू करेंगे। ये किस लिए हुआ? बिकॉज ऑफ इस जगह में सी बार होगा, बिकॉज ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन। ये सी बार का मतलब क्या है? उस समय मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन रहता है जब तुम्हारा इनकम जीरो रहता है। नॉर्मल केस में इधर से शुरू होता पॉइंट, मगर जब हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन के बारे में देखेंगे उस समय कंजम्पशन कर्व, इसको हम लोग लिख लेते हैं कंजम्पशन कर्व, हम लोग को आसानी होगा। उस समय हम लोग क्या सोचेंगे? उस समय हम लोग हमेशा देखेंगे कि जीरो लेवल ऑफ इनकम में कुछ कंजम्पशन रहता है, उसको हम लोग सी बार बोलेंगे। इस सी बार से जब जब इनकम बढ़ेगा, इनकम इधर से इधर, इधर से इधर, इधर ऐसे जाएगा, उस समय कंजम्पशन भी बढ़ता रहेगा। सो ऑब्वियसली इनकम जब बढ़ेगा कंजम्पशन भी बढ़ता रहेगा। इसमें क्या हम लोग बोल सकते हैं? सी इज इक्वल टू सी बार
ये पार्ट प्लस बी वाई। बी क्या है? एमपीसी है। वाई क्या है? इनकम है, इनकम बढ़ रहा है। ऑब्वियसली सी बार तो कॉमन फैक्टर रहा ही है वो चीज़, इसके साथ ऐड होगा एमपीसी प्लस एमपीसी इंटू दैट इनकम। सो ये डायग्राम हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे, इस जगह से शुरू होगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना ये चीज़। लिख लेते हैं एक पॉइंट। व्हेन इनकम increases, consumption increases, and it is not start at origin, because we know at zero level of income there is minimum consumption, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, और ऑटोनोमस कंजम्पशन। ओके, सो ये चीज़ लिख लो कॉपी में और ये डायग्राम भी उठा लो। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी कुछ डिस्कस करेंगे।